Hello everyone, I Pallavi Singh. Welcome to my YouTube channel Education Innovation. In previous lecture, we learned about the assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Today we are going to discuss about the types of assessment, its features, objectives, meaning and function. Types of assessment. There are 4 types of assessment. The first is placement assessment, second is formative assessment, third is diagnostic assessment, and the fourth is summative assessment. We will discuss one by one. Placement assessment. What is placement assessment? Placement assessment is used to analyze the learner's entry behavior, ability, capacity to find whether the student possesses the knowledge, skills and attitude needed to begin the course of instructions. प्लेसमेंट असेसमेंट लर्नर्स के प्रायर एबिलिटी, कैपेसिटी और एटीट्यूड को मेज़र करता है. टीचर्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उनका लेवल ऑफ नॉलेज कहाँ तक है. प्लेसमेंट असेसमेंट आर यूज्ड टू प्लेस स्टूडेंट्स इनटू अ कोर्स लेवल academic. An assessment may be used to determine whether the student is ready for next level study or not. प्लेसमेंट असेसमेंट के थ्रू टीचर्स ये जान पाती हैं कि लर्नर्स जो है वो फर्दर लर्निंग के लिए, फर्दर न्यू स्किल्स एक्वायर करने के लिए रेडी है या नहीं, उसमें उतनी कैपेसिटी है या नहीं है, उसका नॉलेज उस लेवल तक है या नहीं है. एज फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि इफ़ यू आर गोइंग टू टीच about the advanced mathematics in your class, before starting the teaching you should know about that your learners how much they know about the basic mathematics. उनका basic mathematics कैसा है, based on that आप advanced learning start कर सकती हैं अपने क्लास में. as next example की अगर मैं बात करूं, if you are going to teach about the chemical equation in your class, so before that teacher should know about that कि उनके learners को नेम ऑफ द एलिमेंट्स पता है, सिंबल्स पता है, एटॉमिक नंबर पता है. अगर लर्नर्स को ये नहीं पता है कि ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं या उसका एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन को F से डिनोट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 9 है, नियॉन को Ne से करते हैं और उसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो टीचर्स ये नहीं आगे फर्दर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो कर नहीं पाएंगी. ना ही वो केमिकल इक्वेशंस बता सकती हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस तो बहुत दूर की बात है. उनको पहले सिंबल्स, नेम ऑफ द एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए. सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए टीचर्स को ये नॉलेज होना ही चाहिए कि उनके लर्नर्स जो हैं उनका लेवल ऑफ नॉलेज कैसा है. अगर मैं प्लेसमेंट असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात करती हूँ तो बहुत ही इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि उनके टीचर्स को ये जान सके कि लर्नर्स का नॉलेज कितना है, उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है, और इज़ ही और शी इज़ रेडी टू एक्वायर द न्यू नॉलेज. सो प्लेसमेंट असेसमेंट इज़ हेल्प टू नो वेदर द लर्नर इज़ एबल टू एक्वायर द न्यू लर्निंग that is based on the prior knowledge or previous knowledge. So placement assessment ये सारी informations teachers को provide करता है. Apart from that it is help to prepare the lesson plan, teaching learning process, teaching strategy, instructions plan. Also help to check the knowledge of the student, cognitive development of the student, check the certain set of skills related to subject. And it is always done beginning of a unit of a study. अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले टीचर्स को ये पता हो जाए कि मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नियॉन या सोडियम के सिंबल्स क्या होते हैं, तो शी विल स्टार्ट हर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम दैट पॉइंट. तो वो अपनी टीचिंग को वहाँ से स्टार्ट करेंगी. So placement assessment is used to find that learner have or have not that much of knowledge, skills and understanding to begin or provide or acquire the new learning skills that is based on the previous knowledge, previous skills. And placement assessment evaluate the student academic skills, knowledge in different areas such as math, science, reading, writing. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स या साइंस में ही अप्लाई हो रहा है, ये हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई होता है. और इसके बेस पे टीचर्स जो हैं काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन
फाइंड आउट कर लेती हैं अपने लर्नर्स के लेवल ऑफ नॉलेज के विषय में। अगर मैं इम्पॉर्टेंस की बात करती हूँ तो प्लेसमेंट असेसमेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। आफ्टर पैंडमिक व्हेन स्कूल वर ओपन, तो टीचर्स में भी ये प्रेशर था कि उनको ये पता था कि लर्नर्स का जो है बेसिक उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है, और लर्नर्स को तो पता ही था कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो किस लेवल का है। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन टीचर्स ने प्रीवियस जो क्लास थे उसके कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने क्लियर किए, ताकि जो फर्दर लर्निंग है उसको लर्नर्स बहुत ही बेस्ट वे में उसको एक्वायर कर सके, उसको सीख सकें। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट जो है वो 8th में है और वो 9th में गए हैं, तो टीचर्स पहले उनको 8th के जो बेसिक्स थे, जो इम्पोर्टेंट्स थे, कॉन्सेप्ट्स थे, उसको क्लियर किए उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने 8th के सिलेबस को स्टार्ट किया। और अगर लर्नर्स 8th से 9th में गया है या 9th से 10th में गया है, तो उनके जो प्रायर कॉन्सेप्ट से पहले उसको टीचर्स ने क्लियर किए थे बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट असेसमेंट। सो प्लेसमेंट असेसमेंट, formative assessment. Formative assessment is used to monitor students' learning progress during instructions with the help of providing ongoing feedback to students and teacher both. Formative assessment during teaching learning process टीचर्स के द्वारा अप्लाई किया जाता है, ये जानने के लिए, ये चेक करने के लिए कि लर्नर्स का डेवलपमेंट कितना हुआ है, उसने कितना गेन किया है, कितना एक्वायर किया है। इन सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए टीचर्स फॉर्मेटिव असेसमेंट को यूज़ करती हैं। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट इज़ एन इसेंशियल फॉर्म ऑफ टेस्टिंग। विदाउट फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर्स ये फाइंड आउट नहीं कर सकती हैं कि लर्नर्स जो है कहाँ पे वीक हैं, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, और ना ही वो उनको क्वालिटीफुल फीडबैक प्रोवाइड कर सकती हैं। सो इट हेल्प्स टू इंटीग्रेट द लर्निंग प्रोसेस इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म द एजुकेटर्स टू टेक डिसीजन टू इनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग। सो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर्स अपने अप्रोच को, अपने टीचिंग स्किल्स को इन्हांस करती हैं, एज वेल एज लर्नर का जो लर्निंग है वो इन्हांस होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज यूज्ड अंडर असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक टूल सेट और टेक्निक्स है ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसके थ्रू टीचर्स जो हैं लर्नर्स के गैप को फाइंड आउट करती हैं, उनके नॉलेज और उनके डेवलपमेंट को मेजर कर सकती हैं। Formative assessment is a kind of continuous strategy that is implemented by the teachers in the classroom to investigate the knowledge and understanding achieved by the student. Formative assessment especially during teaching learning process टीचर्स के द्वारा अप्लाई किया जाता है, और ये पूरी तरीके से टीचर्स के कंट्रोल में होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर्स एनालाइज करती हैं कि मुझे कौन सा टीचिंग अप्रोच फॉलो करना चाहिए, मुझे कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए कि एक वीक लर्नर भी उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, उस कॉन्सेप्ट को ईजिली कॉन्सेप्ट को एक्वायर कर सके। सपोज कोई लर्नर है जो 40-50% ला करके रह जाता है, और कोई लर्नर है जो 90% लाता है। इनिशियली कोई लर्नर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। सो अगर टीचर्स इस फॉर्मेटिव असेसमेंट को करेक्ट वे में अप्लाई करती हैं, तो एक वीक लर्नर भी अच्छे लेवल तक पहुंच सकता है, उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकता है। सो व्हेन टीचर्स यूज करेक्टली फॉर्मेटिव असेसमेंट, इट हेल्प्स स्टूडेंट who have generally not done well in the past or beginning in the session might be, so वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। It help to raise the overall achievement level and narrow the gap between low and high achieving students. जो एक गैप होता है स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के बीच में, उस गैप को ये कम करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। So formative assessment used to identify the teaching method that is not used correctly, और अगर वो इफेक्टिव वे से वर्क नहीं कर रहा है वो मेथड, तो टीचर शुड चेंज दैट मेथड। हेल्प टू रिकॉग्नाइज व्हेन स्टूडेंट आर स्टक। फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू टीचर्स लर्नर्स के वीक पॉइंट को फाइंड आउट करती हैं, लर्नर्स के वीक पॉइंट आउट को फाइंड करती हैं, उसको रिकॉग्नाइज करती हैं, उसके ऊपर वो वर्कआउट करती हैं, और एट द सेम टाइम टीचर्स उसके इनविजिबल बैरियर्स को भी फाइंड आउट करती हैं, माइन्यूट डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करती हैं जो लर्नर्स के डेवलपमेंट में डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में आप ये कह सकते हैं कि एवरी डे आई एम एजुकेटिंग, बिकॉज
फॉर्मेटिव असेसमेंट में लर्निंग का बार बार फॉर्मेशन होता है, नॉलेज का कंस्ट्रक्शंस होता है. विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर्स लर्निंग स्ट्रेटजी को मॉनिटर कर सकती हैं, लर्नर्स के अंडरस्टैंडिंग और उनकी नॉलेज को मॉनिटर कर सकती हैं. मोस्ट पावरफुल असेसमेंट है. फॉर्मेटिव असेसमेंट मोस्ट पावरफुल क्यों है? बिकॉज इन दिस असेसमेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड अगेन एंड अगेन लर्नर्स को एसेस किया जाता है, उनको उनके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनको एक कंस्ट्रक्टिव लर्निंग प्रोवाइड की जाती है इन द राइट डायरेक्शन. सो फॉर्मेटिव असेसमेंट मॉडिफिकेशन इज पॉसिबल. मॉडिफिकेशन किस चीज़ की हो सकती है फॉर्मेटिव असेसमेंट में? फर्स्ट, बेस्ड ऑन द डेटा टीचर्स rethink about her instructional strategy, her lesson plan, her content, subject content and delivery method. टीचर्स इन सारी चीज़ों को अगेन चेक कर सकती हैं अगर उनको इफेक्टिव डेटा फाइंड आउट नहीं होता है और उस डेटा से वो उनको रियलाइजेशन होता है कि उनका टीचिंग मेथड या जो टीचिंग अप्रोच है वो उतना इफेक्टिव नहीं है, तो वो उस चीज़ को मॉडिफाइड कर सकती हैं. फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है एक इंटीग्रल पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का. ये इफेक्टिव पार्ट है बिकॉज अगर मैं कहूँ कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के बिना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज विदाउट असेसमेंट हाउ कैन यू मेजर योर लर्नर्स डेवलपमेंट. आप जीरो से शुरू होंगे और जीरो पे पहुंचेंगे तो इस लर्निंग का कुछ भी मीनिंग नहीं है जिसका ना कोई ऑब्जेक्टिव है ना कोई गोल है. सो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है और बहुत ही इफेक्टिव पार्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए कोई भी ग्रेड या मार्क्स लर्नर्स को प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं और ना ही वो फाइनल रिजल्ट में इंक्लूड होते हैं. ये असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि टीचर्स अपने लर्नर्स का डेवलपमेंट मेज़र कर सकें, उसका स्किल्स मेज़र कर सकें रिलेटेड टू द टॉपिक. फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर्स को फ्रीक्वेंट फीडबैक फाइंड आउट होते हैं. फ्रीक्वेंट फीडबैक के थ्रू टीचर्स ये जान सकती हैं कि उनके लर्नर्स का डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है. एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज टीचर्स ने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया रिलेटेड टू दैट टॉपिक, उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट अरेंज किया बट उस टेस्ट के लिए कोई मार्क्स नहीं है, ना ही कोई ग्रेड है. सो जब वो टेस्ट का रिजल्ट उनके हाथ में होता है तो वो अगेन वो रीथिंक करती हैं कि उनका जो टीचिंग मेथड है क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है. सो फ्रीक्वेंट फीडबैक जो है इसमें सिर्फ टीचर्स का नहीं होता है, लर्नर्स के डेवलपमेंट का भी फाइंड आउट होता है. डिज़ाइन टू क्वाइट फ्लेक्सिबल. ऑफकोर्स फॉर्मेटिव असेसमेंट बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू लर्नर्स रिक्वायरमेंट उसको मॉडिफाइड किया जाता है, चेंज किया जाता है एंड देन अप्लाई किया जाता है. सो अगर मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट का, तो अगर एक शेफ सूप बनाता है तो अकॉर्डिंग टू दैट जब वो सूप टेस्ट करता है तो अकॉर्डिंग टू दैट वो इंग्रेडिएंट उसमें मिक्स कर सकता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट. तो उस समय उसका क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है. दैट इज़ द फॉर्मेटिव असेसमेंट. वो अभी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं अगेन एंड अगेन. सो सेम हियर फॉर्मेटिव असेसमेंट में लर्नर्स के नॉलेज का कंस्ट्रक्शंस किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है अगेन एंड अगेन असेसमेंट के थ्रू. मोस्ट पावरफुल असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो बहुत ही पावरफुल असेसमेंट है बिकॉज ये लर्नर्स के नॉलेज को, स्किल्स को, डेवलपमेंट को, ओवरऑल डेवलपमेंट को मेजर करता है. एट द सेम टाइम ये टीचर्स के टीचिंग स्किल्स को, मेथड को, अप्रोच को, डिलीवरी ऑफ कंटेंट को, इन सारी चीज़ों को मेजर करता है. सो इस असेसमेंट में सिर्फ लर्नर्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, टीचर्स का भी डेवलपमेंट होता है. टीचर्स अपनी टीचिंग स्किल्स को डेवलपमेंट करती हैं और लर्नर्स अपने लर्निंग को डेवलपमेंट करते हैं. So we can say that formative assessment is used to gather information during each lesson to identify gaps, weaknesses and ensure that all students have mastered in the topic before summative assessment. जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है, ये कहा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा. If you like my session, please like, share and subscribe. Thank you so much. See you in the next video.